Indian economy is doing quite great, and basis that markets will also do great. So how do I spot opportunities in the market? Is there a framework for that? If you want high returns, then you have to take risk. तो अब आपके पूरे के पूरे कॉर्पस को ही डिकोड करता है. Of course है कि मैं करोड़पति हूँ. मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें 13 स्टॉक्स, उसमें मेरा बुलिश बेट है डिफेंस. Really? AI रिलेटेड बूम अभी इंडिया में बहुत आने वाला है, खासकर डेटा सेंटर्स. IT ऑफ कोर्स मोस्टली पीपल आर नेगेटिव अबाउट इट, लेकिन मैं वैसा नेगेटिव नहीं हूँ. इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सपर्ट का सुनकर आप पोर्टफोलियो ना बनाएं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का सुनकर. मेरा अब वो फनल कैसा दिखना चाहिए टू कम डाउन टू द राइट फंड फॉर मी? देखिए, सबसे पहले तो आपको Hi sir, welcome to the show and thank you so much for coming here. I think a good starting point for this conversation would be to understand कि फ़िलहाल market कहाँ पर है. So looking at everything that's happening in the news, what do you think? What's your current outlook for the market? So, in simple terms, whenever you are looking at market, any country's market, in fact, Indian market, if you're looking at, so first, of course, we'll look at economy because mostly it depends on that. So, generally, I tell my subscribers, in fact, that three things you have to look at. Okay. Number one is nominal GDP of your country. Nominal GDP means GDP plus inflation roughly. Okay. So, GDP, Indian GDP, roughly about 7% we are getting, and inflation is more than 4% now. Yeah. Okay. And plus in coming months, mostly we'll see 5% plus inflation in India. Okay. So if you add GDP and inflation, so 11 to 12% nominal GDP roughly we are getting. Okay. Second, you will look at banking credit growth. That's very important. How much is credit growth right now? It's about 18%. And Banking can you credit also growth. simplify what is banking credit note? Yeah, banking credit growth means how much loan banks are giving. Okay. And at what rate it's increasing. Okay. So that's very important. So that's also huge. 18% for any economy is huge. Means demand is there. Okay. Because India is a demand-led economy, consumer demand-led economy. So that's great. Third and most important is earning growth. Earning means profit. So any company, if you are investing, you have to look at profits of that Okay. company. Yeah. So that's also in double digit. So of course, sales, if you look at latest results which are coming, sales growth, that is revenue, is about 20%, huge. But profit-wise, still we are not there, I agree. But that mostly because of war. Rupee has depreciated a lot. So these are the issue, and plus because of that, imports are costly. While crude oil prices has gone up. Ji. So because of that, profits, yes, because margins have hit badly. So because of that, profits, yes, I agree. But then coming quarters, that will also come up. Okay. So if you add all these three, Indian economy is doing quite great. Okay. And basis that, markets will also do great. Only issue is whenever you look at markets, not only these things you will look at, you will also look at valuations. Generally, I get queries, Japan, 10-year plus no returns. Even US, this happened, 10 years no returns. But you have to look at what happened before that. Yeah. Before that, for about 2-3 years, huge returns. वैल्यूएशंस बहुत ऊपर चले गए. बट इंडिया में ऐसा नहीं है ना. पहले से हमारा बहुत कम हुआ, आई एग्री, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप कंपेयर करोगे दूसरे इकोनॉमी से, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमी से, तो बहुत हम कम हुए, ऐसा नहीं है. पहले से सिर्फ कम हुआ है. लेकिन हाँ, इंडियन पैरामीटर्स से अगर आप कंपेयर करोगे मतलब लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, वहाँ पे हमें एडवांटेज दिख रहा है. Okay. तो लास्ट 2 ईयर्स टाइम करेक्शन हुआ है मार्केट्स में, कोई खास रिटर्न आया नहीं. ऑल्दो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है कि रिटर्न नहीं आया है. लार्ज कैप्स टोटली हमने रिटर्न नहीं आया है, लेकिन मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स रिटर्न आया है. जितने लोग बोल के निकल जाते हैं ना रिटर्न ऐसा बिल्कुल नहीं है. रिटर्न आया, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा पोर्टफोलियो भी है, तो यस रिटर्न आया है. लेकिन हाँ, जितना एक्सपेक्टेशन था ना उतना नहीं आया है. बट हाँ, अगर आप मुझे एग्जैक्टली पूछोगे कब होगा, मुझे आप डेट बताओ, मंथ बताओ, दैट्स इम्पॉसिबल टू से. ठीक है, Of course. तो ये कोई भी कमेंट नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन बट कमिंग मंथ्स कोर्स वी कैन एक्सपेक्ट सम डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडियन मार्केट्स बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. Yeah. Okay, तो अब मुझे बड़ा होपफुल सा फील हो रहा है about the markets, right? Which is great because the news tells me otherwise. But and अच्छा लग रहा है सुन के that things are going in our favor. Yeah. But as a retail investor and as a normal person, and as a normal Indian investor, मुझे ये पता चल चुका है कि market for the next few years it's probably going to take turn for good. But मैं कैसे capitalize करूँ? तो how do I spot opportunities in the market? Is there a framework for that? Yeah, it's pretty simple. So whenever you go for investments, in fact anything in your life, keep it simple. Yeah. If you complicate it, that means you are in trouble. Always remember this. Okay. So if you are going for investments, somebody new doesn't know.
So of course 2 options are there, popular options. One is mutual funds and second is stocks. Yeah. So if you don't know much about it, go for mutual funds, plain vanilla. This is what I generally say, because there is one fund manager who will take care of it. Yeah. आपको क्या करना है, एक डिसेंट सा फंड, अगर पैरामीटर्स आई विल कवर इट लेटर ऑन. सो जस्ट कोई एक अच्छे क्वालिटी का, कुछ अच्छे क्वालिटी का म्यूचुअल फंड्स आप सेलेक्ट करो और रेगुलर पीरियड्स पे इन्वेस्ट करते रहो. रेस्ट फंड मैनेजर विल टेक केयर. हाँ, लेकिन अगर आपको मार्केट्स का अच्छा आइडिया है, फंडामेंटल्स का अच्छा आइडिया है, तब तो ऑफ कोर्स आप स्टॉक्स के लिए भी जा सकते हो. इनफैक्ट जब मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रिटर्न का जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो कैसा है म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में. तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा. बट हाँ, टू स्टार्ट विथ, अगर आपको मार्केट का आइडिया नहीं है, फर्स्ट टाइमर है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें. डायरेक्टली स्टॉक्स में बिल्कुल ना जाएं. एक बार आपको आइडिया हो गया, देन सर्टली यू कैन गो फॉर इट. यहाँ पे ये भी ध्यान में रखें कि किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर चेक करें. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. मतलब आप अगर मुझसे बोलते हो कि नहीं मैं इन्वेस्ट तो करूंगा लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपये भी कम नहीं होना चाहिए, देन हाउ कैन यू इन्वेस्ट इन इक्विटी इन दैट केस. आप एफडी जाओ, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जाओ, गवर्नमेंट स्कीम्स जाओ. सो ये मेंटली यू हैव टू प्रिपेयर्ड. इफ यू वांट हाई रिटर्न्स देन यू हैव टू टेक रिस्क. तो अगर आप रिस्क ले सकते हो और इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, मतलब मैं डिफाइन करता हूँ इन्वेस्टमेंट होराइजन ना, फॉर इक्विटी मैं बोल रहा हूँ, बिलो 5 years शॉर्ट टर्म इन इक्विटी, 5 to 10 years medium term, and more than 10 years is long term. Okay. So if your investment horizon is at least medium to long term, then only you go for equity. If not, it's better not to go for it. Understood. Okay. So आपने बोला कि रिस्क कैपेसिटी को evaluate करना बहुत ज़रूरी है. Correct. How should one go about evaluating कि वो कितना रिस्क मार्केट में ले सकते हैं? इसका कोई नंबर होता है, कोई रेंज होता है, या इट्स जस्ट अ फीलिंग दैट यू गेट? Yeah, so how you can decide about it is कि आप कितना लॉस झेल सकते हो. सिंपल फार्मूला. ठीक है, तो सपोज आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, वो 90 हो गया, 80 हो गया, समटाइम्स इवन 70 हो गया, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी 60 भी हो सकता है. तो हाउ मच लॉस यू कैन बेयर. तो आप बोलोगे नहीं 10-20% ज़्यादा मैं प्रिंसिपल अमाउंट लॉस नहीं बेयर कर सकता हूँ. तो सबके लिए प्रोडक्ट्स है. सो इट्स नॉट दैट अगर आप लॉस बेयर नहीं करना चाहते हो ज़्यादा तो आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है. म्यूचुअल फंड हैज़ ऑल द प्रोडक्ट्स. अब जैसे आप बोलोगे नहीं मैं ज़्यादा लॉस नहीं देखना चाहता, तो डेट म्यूचुअल फंड्स इज़ अ बेटर ऑप्शन. थोड़ा बहुत आप लॉस लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं, हाइब्रिड फंड्स यू कैन गो फॉर. और अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, देन प्योर इक्विटी फंड्स ना, 5 to 10 years सपोज यू हैव इन्वेस्टमेंट होराइजन, देन यू कैन गो फॉर लार्ज कैप्स, flexi caps. 10 years or more you can go for multi caps, mid caps, small caps. So options are everywhere. Just you have to clarify from your end how much risk you can take, and what's your risk profile or investment horizon, for how long you want to invest, and you can finalize it. Understood. Okay. So एक example लेते हैं. Let's say that I want to invest in मेरा long term का investment horizon है, and I have a fairly decent risk capacity. So I want to invest in a completely equity based fund. Right, a mutual fund. Now, once I recognize कि मेरे को इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है, मेरा अब वो फनल कैसा दिखना चाहिए to come down to the right fund for me? So to start with, if you are new, generally I say start with maybe large cap index fund. Okay. Maybe one index fund you can go for, Nifty 50 index fund. Start with that. And after that, next fund, maybe Nifty next 50 you can look at, index fund. Large caps mostly I say, it's not that you cannot go for actively managed, but for large cap generally I say go for index funds. Okay. And after that, flexi caps you can go for. So these are the basic ones. You can start with this. And once you are slightly comfortable with the markets, now maybe few months or 1 or 2 years you are slightly comfortable, okay, I can bear some loss. Then you can of course go for multi cap, mid cap, small cap also. Now generally because I am assuming new investor doesn't know much, so that way I am saying. So initially basic thing you have to look at is long term track record. Okay. जनरली जब भी मैं लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बोलता हूँ ना, तो सामने से क्वेश्चन आ सकता है सर लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड फ्यूचर में क्या होगा, कि फंड मैनेजर ने अभी तक कैसा काम किया, क्योंकि मार्केट साइकिल्स में मूव करता है ना, समटाइम्स अप समटाइम्स डाउन. तो उस मार्केट साइकिल को कैसे कैच कर रहा है ना, सेक्टर्स को कैसे फाइंड आउट कर रहा है, स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट कर रहा है, उसका रिसर्च टीम कैसा है. ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं भाई इतने साइकिल से इसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, होगा नहीं होगा नोबडी नोज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और वो भी सिर्फ लास्ट 1 year नहीं. ट्राई टू गो फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ना, 1 year, 3 year, 5 year, 10 year. एंड ऑलवेज कंपेयर विद बेंचमार्क.
जैसे निफ्टी 50 का लार्ज कैप है तो निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें, और नॉट शॉर्ट टर्म 1 ईयर या 2 ईयर्स देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मोस्टली आपका रॉन्ग नंबर लगेगा। और अगर कुछ एडवांस्ड मैट्रिक्स चेक करना चाहते हैं ना, ये तो एक सिंपल मैंने बता दिया ना, तो फिर बहुत कुछ है उसके अलावा। जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को ना, जैसे शार्प रेशियो आप चेक कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ इंफॉर्मेशन रेशियो आप चेक कर सकते हो। इससे पता चलता है कि फंड मैनेजर जो रिटर्न जनरेट कर रहा है उसके लिए वो कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। तो ऑफ कोर्स हम वैसे फंड मैनेजर को प्रेफर करेंगे जो कि कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, या फिर अगर ज़्यादा रिस्क ले रहा है तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। जैसे शार्प रेशियो हुआ ना, तो 1 के आसपास अगर है तो उसे अच्छा मानेंगे, 1 to 2 के आसपास है तो बहुत अच्छा, और कहीं कहीं 2+ भी देखने को मिलता है, एक्सेप्शनल, लेकिन वो तो एक्सेलेंट है। इन्फॉर्मेशन रेशियो भी आप देखें कि 0.5 से 1 के बीच है तो ठीक है, 1 के आसपास है तो बहुत अच्छा, 1 से ज़्यादा है तो एक्सेलेंट। इस तरह से तो रफली ये पैरामीटर्स आप देखें, उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। सो लेट्स से आई हैव अ थीम, अ सेक्टर और अ कैटेगरी। अब उसमें इन्वेस्ट करने के लिए या तो मैं SIP के थ्रू कर सकती हूँ या लमसम, तो आपका क्या प्रेफरेंस होता है? एट व्हाट पॉइंट शुड आई कंसिडर ईदर ऑफ द टू डिप्लॉयमेंट स्टाइल्स? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर कोई 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट उसके बाद 15-20 ईयर्स में यहीं पे नहीं रहेगा ना, Of course, मेनी टाइम्स ऊपर जा चुका होगा। तो अगर कोई लमसम भी कर रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ तो गलत नहीं है। म्यूचुअल फंड्स के लिए अगर आप जा रहे हैं तो मेरा सजेशन यही होता है ना कि आप STP रूट के थ्रू जाए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। डेट फंड में आप पैसा रखें, लमसम पैसा पूरा 6 मंथ्स का STP कर दें। एवरी मंथ डेट फंड से इक्विटी फंड में पैसा ट्रांसफर होगा, 6 मंथ्स में आपका पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो वहाँ पे मार्केट नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, आप थोड़ा मार्केट को समझ भी लोगे, और प्लस अगर बहुत ज़्यादा गिरता भी तो आप डरोगे नहीं, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि नहीं पैसा और इन्वेस्ट होना है, मैंने पूरा नहीं कर दिया इन्वेस्ट। तो इसीलिए मैं हमेशा बताता हूँ लमसम करने में प्रॉब्लम नहीं है अगर आप 10 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन वो साइकोलॉजिकल चीज़ है ना, मैंने किया और गिर गया, फिर आप भाग गए, लॉस हो गया, इसलिए मैं मना करता हूँ जनरली STP रूट से जाएं। Okay, understood. And for the next, let's say, 10 years का horizon एक लेके चलते हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या थीम्स हैं जिसके लिए आप एक्साइटेड हो? एडिशनली यू सी कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको लगता है कि कुछ स्ट्रक्चरल टेलविंड्स हैं उन सेक्टर्स और थीम्स के लिए। सो व्हाट आर द सेक्टर्स दैट आर एक्साइटिंग यू? ओके, सो मैं इसमें अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, सो दैट वी विल गेट एन आइडिया। तो मेरा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें 13 स्टॉक्स एज आई टोल्ड यू ना, उसमें मेरा बुलिश बेट है डिफेंस, नंबर 1। रियली? क्योंकि आप देख रहे हो ना, अगर आप हमारे नेबर्स चेक करोगे ना, उसके बाद कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ जो खर्च होगा ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन डिफेंस विल बी ह्यूज, मतलब ऑलरेडी हो रहा है, बट इन कमिंग ईयर्स इट विल नॉट गो डाउन। और प्लस मेक इन इंडिया चल रहा है ना, इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो डिफेंस मेरा बहुत पॉपुलर थीम है, लेकिन डिफेंस का वैल्यूएशंस आपको हमेशा देखना होगा, ठीक है? क्योंकि जनरली क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा आता है, उसके बाद लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो गिर जाता है, फिर भाग जाते हैं। तो डिफेंस तभी अच्छा है जब आपको अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। तो अगर जब भी वहाँ गिरावट आए ना तो डिफेंस बहुत अच्छा है। मेरे पास भी डिफेंस के 2 स्टॉक्स हैं इनफैक्ट, और अच्छा मतलब जो भी पोर्टफोलियो है मेरा अच्छा खासा एक्सपोजर है उसमें। दिस इज़ नंबर 1। सेकेंड इज़ AI थीम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो ये पॉपुलर भी है काफ़ी ना। AI थीम में आप कैसे जा सकते हो? इंडिया में तो ऐसा कोई AI का कंपनी है नहीं, मतलब एक दो इक्का दुक्का मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, एटलीस्ट डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनीज आपको इंडिया में मिलेंगे, ठीक है? तो वो आप देख सकते हो। एंड सेकेंड इज पावर, बिकॉज इंडिया इज़ अ ग्रोइंग इकोनॉमी, पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है, और प्लस AI रिलेटेड बूम अभी इंडिया में बहुत आने वाला है, ठीक है? खासकर डेटा सेंटर्स, वहाँ पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो पावर रिलेटेड भी अगर स्टॉक्स आप लेना चाहो ना, ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ वैल्यूएशंस, अभी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है? तो वो बिल्कुल देख सकते हो। पावर में भी मैंने क्या किया है ना कि जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज हैं उस पर ज़्यादा मेरा ध्यान है, तो मैंने वो रखा हुआ है। और प्योर AI का एक कंपनी भी मेरे पास है, एक स्टॉक मेरे पास है। उसके साथ साथ आपको देखना होगा कूलिंग, बिकॉज डेटा सेंटर्स में कूलिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे रिलेटेड एक स्टॉक मेरे पास है। IT, ऑफ कोर्स मोस्टली पीपल आर नेगेटिव अबाउट इट, लेकिन मैं वैसा नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि लार्ज कैप्स आई एग्री प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि वैल्यूएशंस किस चीज़ का आपको मिलेगा ना, प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं, तो प्रॉफिट ग्रोथ आएगा तब तो आपको वैल्यूएशंस मिलेगा, तो इसीलिए लार्ज कैप्स में प्रॉब्लम है। लेकिन मिड कैप्स में ऐसे स्टॉक्स अवेलेबल हैं जहाँ की परफॉर्मेंस आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ठीक है? तो मेरे पास मिड कैप IT का एक स्टॉक है एंड इज डूइंग रियली वेल।
तो वो देखा जा सकता है आईटी में। तो अगर देखिए क्वालिटी अच्छा है ना तो अच्छा करेगा, ठीक है। तो मेरे पास है और वो इज डूइंग प्रीटी वेल, आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट, वो देखा जा सकता है। पोर्ट रिलेटेड इंडिया में इसका डिमांड बहुत बढ़ने जा रहा है, तो अगर पोर्ट रिलेटेड कोई स्टॉक है उसको देखा जा सकता है। मेरे पास उस तरह का एक स्टॉक है, ठीक है। तो ये सब कुछ है। और फार्मा, ठीक है, फार्मा भी ज़रूर देखें। दिस व्हाट माय सजेशन विल बी। मेरे पास ऑलरेडी एक फार्मा स्टॉक है और मोस्टली इन कमिंग मंथ्स वन मोर आई एम गोइंग टू बाय, आई हैव ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड इट, तो मैं जल्दी उससे भी बाय करूँगा। तो ये सब कुछ थीम्स हैं। और इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स भी देख सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि इंडिया अभी भी ऑल्दो बैंक्स परेशान है कि डिपॉजिट्स नहीं आ रहा है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पैसा चला जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर पेनिट्रेशन आप देखेंगे तो बहुत कम है इंडिया में। तो म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक का पेनिट्रेशन आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स भी मस्ट है। मेरे पास ऑलरेडी 2 स्टॉक्स हैं एंड परफॉर्मेंस हैज़ बीन प्रीटी गुड टिल नाउ। आई होपिंग कि कमिंग ईयर्स में परफॉर्मेंस और इम्प्रूव करेगा। तो ये सब आप थीम चेक कर सकते हो। सो मोस्ट करेंटली ऑल्सो दे आर डूइंग गुड एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म के लिए तो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है ना, एटलीस्ट 10 ईयर 15 ईयर्स। तो सारे होराइजन्स के लिए भी इन स्टॉक्स को या फिर इन थीम्स या सेक्टर्स को देखा जा सकता है। Understood. This is very interesting. Okay, so let's say कि मैंने पावर एज अ थीम इज वेरी एक्साइटिंग टू मी, राइट? अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स का रूट है। म्यूचुअल फंड्स हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस कर लिया है। नाउ इफ आई हैव टू अगेन क्रिएट अ फनल टू फाइंड द बेस्ट स्टॉक, उसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए? देखिए, स्टॉक्स में सबसे पहले आप मार्केट कैप देख लो, उससे क्लैरिटी मिलेगा ना, क्योंकि उसी से रिस्क, रियल रिस्क पता चलता है। लार्ज कैप, मिड कैप, ऑल्दो एम्फी का क्लैरिफिकेशन तो है कि टॉप 100 जो मार्केट कैप है उसको आप लार्ज कैप बोलते हो, उसके बाद के 150 उसको आप मिड कैप बोलते हो, और उसके बाद के जितने स्टॉक्स उसको आप स्मॉल कैप बोलते हो। लेकिन फिर भी मार्केट कैप वाइज ना, अब जैसे 1000-2000 करोड़ इस रेंज का है, 10,000 करोड़, तो वो स्मॉल कैप में आएगा, तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप तो उसको आप लार्ज कैप बोलोगे, उसके बीच का है तो वो सब मिड कैप आप बोलोगे। तो ये सबसे पहले देखो, और बिल्कुल आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप स्मॉल मार्केट कैप्स के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। अगर अच्छी जानकारी है तभी जाए, तो ये सबसे पहले। उसके बाद कोई भी कंपनी स्टार्ट क्यों करता है? बेसिक प्रॉफिट के लिए, नहीं तो आप एनजीओ खोलोगे, ठीक है? तो आप कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों चेक करो, सिर्फ लास्ट 1 ईयर या 1 क्वार्टर का नहीं। और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेल्स ग्रोथ भी आपको देखना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है, सेल्स ग्रोथ कम आ रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगा, ठीक है? तो सेल्स ग्रोथ भी आना चाहिए। तो अबाउट 15% के आसपास का सेल्स ग्रोथ या एटलीस्ट 10% प्लस का सेल्स ग्रोथ होना ही चाहिए कंपनी में। प्रॉफिट ग्रोथ जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। जैसे लार्ज कैप्स हो गया तो वहाँ आप ठीक है भाई 15-20% के आसपास है तो अच्छा माना जाएगा। मिड कैप है तो मे बी 20-25%, स्मॉल कैप है तो 25-30%। इस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ अगर दिख रहा है उसे अच्छा माना जाएगा। और ऑफकोर्स सिर्फ इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हार्ड अर्न मनी है। तो इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे ROE। अब मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया तो मैं किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट करूँगा उससे, ROE, ठीक है? रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे लार्ज कैप्स है तो वहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे कि अबाउट 15% के आसपास का रिटर्न मुझे दे, ROE एक्सपेक्ट करो आप। क्योंकि देखिए जो फिक्स्ड इनकम है ना, वहाँ भी तो 7-8% के आसपास मिलता है। इक्विटी में हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, कॉमन लॉजिक ये है। तो वहाँ पे 7-8% ऑलमोस्ट नील रिस्क के साथ या काफ़ी कम रिस्क के साथ मिल रहा है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए ना कि वहाँ से एटलीस्ट 5-6% ज़्यादा मिले। तो इसीलिए लार्ज कैप्स के लिए जाए तो ROE 12-15% के रेंज में बिल्कुल आप देखें कि उतना हो। और अगेन मिड कैप स्मॉल कैप में अलग होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो मिड कैप में 20% के आसपास देखूंगा, स्मॉल कैप 25-30% के आसपास देखूंगा। जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा हो, लेकिन बेयर मिनिमम इस तरह का मैं देखूंगा। और इसके साथ साथ ROC भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ROE में सिर्फ आपने इक्विटी पार्ट देखा, ठीक है? ROC में आप इक्विटी और डेट दोनों देखते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? तो ये ओवरऑल पिक्चर आपको देता है। अगर किसी कंपनी ने डेट भी ज़्यादा ले रखा है तो आइडियली हमें ROC भी चेक करना चाहिए। और इसके साथ साथ डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करें कि कंपनी का डेट कितना है। फॉर एन इंटरमीडिएट इन्वेस्टर जिसकी फुल टाइम जॉब नहीं है, व्हाट इज एन ईजियर वे फॉर देम टू एनालाइज अ कंपनी? कहाँ से स्टार्ट करा जाए कंपनी की रिसर्च या स्टॉक की रिसर्च? देखिए, सबसे पहले तो आपको डेली बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना है। ये मैंने बार बार हमेशा मैं बोलता हूँ, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ना। मैं अभी भी इकोनॉमिक टाइम्स डेली पढ़ता हूँ, डेली। मतलब स्कूल डेज से मेरा चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब कॉलेज डेज से, नॉट स्कूल डेज से। स्कूल डेज में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, आपको अपना नॉलेज हमेशा बढ़ाते रहना है, ठीक है, मार्केट में। तो जो अभी मैंने पैरामीटर्स आपको बताए ना, वो बेसिक है, ठीक है? यहाँ से आप स्टार्ट करें।
ओके और उसके बाद ट्राई करें कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट धीरे धीरे सीखने का. इट विल टेक टाइम, आई एग्री, बट वो बहुत ज़रूरी है. उससे आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी. जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, जैसे मैं बार बार बोला प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है जी. लेकिन जब भी कोई कंपनी सेल्स करता है ना, तो वो एक तो कैश का सेल्स होता है कि आपने बेचा, आपको पैसा मिल गया. लेकिन काफ़ी कंपनीज में बहुत सारा सेल्स जो होता है वो क्रेडिट पे होता है. आपने सेल किया, पैसा बाद में मिलेगा आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. अब वहाँ पे रिस्क है, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली वी डोंट नो. ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा. देखिए प्रॉफिट में वो भी इंक्लूड हो गया, क्योंकि सेल जब आप कर रहे हो ना, क्रेडिट पे मिलने वाला वो भी आपने ऐड कर लिया, उसके कारण आपका प्रॉफिट ऊपर चला गया. लेकिन बैंक अकाउंट में देखोगे तो पैसा है ही नहीं, क्योंकि वो क्रेडिट पे आपने बेचा है. तो इसीलिए आपको ये सब भी देखना पड़ेगा. ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सही में यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए. लेकिन गो स्लो. मैंने जो पहले बेसिक्स बताया ना, उससे आप काम चलाएं और फिर धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाएं और टेक इट फॉरवर्ड. ओके, ठीक है. तो अब आपके पूरे के पूरे कॉर्पस को ही डिकोड करते हैं, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड. सो एज वी स्पीक टुडे, आप अपनी नेटवर्थ को कैसे डिफाइन करते हो एंड आपका पूरा पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्टेड है? ओके, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है. इनफैक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे 2 बहुत ही पॉपुलर क्वेरीज हैं. जी. ठीक है, तो उसमें से ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्वेरी है. ओके. सर आप करोड़पति हैं सर आपके पास कितना पैसा है? जी. तो इसका आंसर ऑफ कोर्स है कि मैं करोड़पति हूँ और मेरे पास अच्छा खासा पैसा है कि मतलब मेरा लाइफ अच्छी तरह से बीत जाए, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा खासा हो जाएगा. प्लस मैंने अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया है ना कि मेरे ऊपर कभी प्रेशर आता ही नहीं है. जस्ट मैं एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी है, म्यूचुअल फंड्स में भी है. स्टॉक्स का पर्पस क्या है कि मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए वहाँ से कुछ पैसा आएगा और प्लस वेल्थ क्रिएशन, बच्चों के लिए वहाँ से पैसा जाएगा. ठीक, वो हुआ वेल्थ क्रिएशन. 2 चीज़ें हैं. म्यूचुअल फंड क्या है? बच्चों के एजुकेशन के लिए बिल्कुल अलग रखा हुआ है वो, कि बच्चे वर्ल्ड में जहाँ चाहें वो जाकर पढ़ाई कर सकते हैं. इस तरह का कॉर्पस है वहाँ पे. ओके, एंड आपका एसेट एलोकेशन कैसा दिखता है? इफ यू कैन गेट परसेंटेज रेंजेस, दैट विल बी ग्रेट. ओके, तो मेरा मोस्टली इक्विटी है. डेट में थोड़ा बहुत बिल्कुल मैं रखता हूँ, लेकिन मोस्टली इक्विटी में स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स में अबाउट 40% के आसपास, रफली बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स है ना, फंड मैनेजर ऑल्सो कीप चेंजिंग इट. तो 40% के आसपास लार्ज कैप्स में है और बाकी ऑलमोस्ट 60% स्मॉल कैप मिड कैप में है. बट स्टॉक्स में और भी ज़्यादा ये एग्रेसिव है. स्टॉक्स में लार्ज कैप बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10-20%, दैट्स इट. लार्ज कैप्स और पूरा का पूरा मिड कैप स्मॉल कैप में है. इसलिए मैं बोलता हूँ एक्सपर्ट का सुनकर आप पोर्टफोलियो ना बनाएं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स का सुनकर, क्योंकि मेरा अलग है. तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड ना, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज कैसा है ना, मार्केट नॉलेज, उसके आधार पे आप डिसाइड करो. बट हाँ, मेरा ऐसा है फिलहाल. ओके, एंड जब हम पहले बात कर रहे थे, आपने कहा था दैट यू हैव अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू इंटरनेशनल इक्विटी एज वेल. व्हाट्स योर थियोरी एंड थीसिस वहाँ पे? बिकॉज यू लुक वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडियन मार्केट. तो व्हाई डू यू फील द नीड टू इन्वेस्ट इन ग्लोबल मार्केट्स एज वेल? So it's part of diversification. So it's very important. So Indian markets आप देखें तो of course हम इंडिया में रह रहे हैं, हमें अच्छा खासा आइडिया है, तो इंडियन मार्केट में of course हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होगा. लेकिन वर्ल्ड मार्केट से आप कंपेयर करेंगे ना, तो इंडियन मार्केट बहुत छोटा है. और प्लस ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, $1 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, इस तरह का मार्केट कैप, ये बाहर इस तरह की कंपनीज आपको मिलती हैं. उनका ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है. तो इंडियन कंपनीज़ का ऑफकोर्स ग्रोथ अभी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं. उन लोगों का ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना, 30%, 50%, 100%, बड़ी बड़ी कंपनीज़ का. हमारे यहाँ छोटी कंपनीज़ का कुछ ग्रोथ आता है, लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज़ का उस तरह का ग्रोथ आ रहा है. तो यस, डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आइडिया में लेना चाहिए. मेरे पोर्टफोलियो में अबाउट 20% का इंटरनेशनल एक्सपोजर है. ठीक है, इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी अभी अगर आप मार्केट्स देखेंगे ना, तो सही बात है, बाहर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो. यूएस मार्केट लगातार सालों से रिटर्न, कोरिया का मार्केट, ताइवान का मार्केट, इवन जापान का भी इधर रिटर्न आ रहा है. तो इस तरह का वैल्यूएशन जब भी हो तो ऑफकोर्स आपको एक्सपोजर लिमिटेड रखना चाहिए. अगर अभी आप बोलोगे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहता हूँ, बहुत बड़ा एक्सपोजर लूँगा, लमसम इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो दैट डजंट मेक सेंस. लेकिन अभी भी अगर कोई स्टैगर्ड वे में ना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, करना चाहिए. देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा होना तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है. वैल्यूएशंस कम हो जाए तो फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है. तो इंटरनेशनल मार्केट्स ऑफ कोर्स वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट डजंट मेक सेंस. लेकिन छोटा छोटा अगर कोई एक्सपोजर लेना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन, इट मेक्स सेंस. मतलब यूएस मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, इकोनॉमी सबसे बड़ा है, उसका इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा है. तो ऑफ
कोर्स इट मेक सेंस टू। तो जब भी आप इंटरनेशनल एक्सपोजर जाए ना, तो सबसे पहले यूएस इक्विटीज़ के लिए जाएं, इट मेक सेंस। एक बार वहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया, कंफर्टेबल हो गए, तब आप दूसरे मार्केट्स के लिए देख सकते हैं। तो मेरा भी ज़्यादातर जो भी इन्वेस्टमेंट है यूएस मार्केट्स में है, लेकिन साथ ही मेरा थोड़ा बहुत ताइवान मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा चाइना मार्केट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा जापान के मार्केट में भी। मैंने साउथ कोरिया मार्केट में एक्सपोजर नहीं लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, सिल्वर की तरह है ना, 5% अप डाउन, तो उस तरह के मार्केट में जनरली आई एम नॉट कंफर्टेबल इन्वेस्टिंग। लेकिन हाँ, बाकी दूसरे मार्केट्स में थोड़ा बहुत एक्सपोजर मेरा है। और मुझे लगता है कि अगर स्मॉल अमाउंट्स में एक्सपोजर लिया जाए, इट मेक सेंस। हाँ, जब ज़्यादा गिर जाए मार्केट, तब हम एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। एंड आप फिर कैसे इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्टली और थ्रू ETFs और म्यूचुअल फंड्स? नहीं, तो मेरा बोथ वेज है। ओके, अब जैसे यूएस इक्विटीज़ है ना, तो मेरा डायरेक्ट इक्विटी भी है यूएस में, इवन ताइवान में भी डायरेक्ट इक्विटी है, लेकिन जापान, चाइना, ये सब मेरा ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट है। अंडरस्टूड। ओके, सो आई थिंक मेरे क्वेश्चंस कभी एंड नहीं होंगे, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, बट वी आर नियरिंग द एंड ऑफ टाइम एंड आई थिंक मैंने बहुत टाइम आपसे ले लिया है। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज देन, यू बीन इन द मार्केट्स फॉर 2 decades, तो मार्केट ने आपको ऐसा क्या सिखाया है जो आप हमारी ऑडियंस को सिखाना चाहते हो? देखिए, मार्केट के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैंने जो सीखा है ना, कि लाइफ ही है ये। मतलब लाइफ में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ऑप्टिमिस्ट बनना है। मतलब देखिए, कोई भी सर्कमस्टेंस आपके सामने आ रहा है ना, तो हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो ख़राब हो, ठीक है। तो अगर अच्छा है तब तो उसमें बहुत सारा पॉजिटिव है, लेकिन उसमें भी जो नेगेटिव लोग हैं उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ लेंगे। उसी तरह से कुछ अगर ख़राब इवेंट है, तो जो ऑप्टिमिस्ट है उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ सकता है। स्टॉक मार्केट भी यही है, आपको कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। इंडियन ग्रोथ स्टोरी में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप टिकेंगे। तो लाइफ की तरह ही है, हार्ड वर्क यहाँ भी चाहिए। इन्फॉर्म जो आपका नॉलेज है ना, लगातार आप बढ़ाते रहें, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। जनरली लोग पूछते हैं ना कि ये मार्केट नॉलेज की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपको कॉन्फिडेंस देता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर आपको ये पता हो थोड़ा ना, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप मार्केट से भागेंगे नहीं अगर मार्केट में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ समय में चला जाएगा। तो मार्केट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और सिंप्लीफाई करके रखें, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। मतलब इंडिया या फिर कहीं भी क्या होता है ना, कि जब आप कुछ सिंपल बोलते हो ना, लोगों को समझ में आ जाता है, तो बोले यार ये तो बहुत सिंपल है, मुझे भी पता है। तो हो सकता है वो ज़्यादा वैल्यू ना दे। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड आप बोल दोगे ना, जो कि उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो उन्हें अरे बहुत अच्छा बोल रहा है ना, मुझे समझ में नहीं आया। बट ये बिल्कुल गलत तरीका है करने का। अगर कुछ सिंपल है उसको ही फॉलो करें, लॉन्ग टर्म में वो आपकी मदद करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप आए, आपने हमें टाइम दिया। मेरे को तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला है एंड आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। या थैंक्स लॉट फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू। थैंक यू सो मच सर, एंड यू टू, आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द नेटवर्थ शो, सो टेक केयर अंटिल देन।